تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد للہ على كل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عقیدہ نمبر 61 ہے. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ولا يخرج خارج نہیں ہوتا بندہ من الإيمان ایمان سے الا بجحود ما مگر اس چیز کے انکار کے ساتھ ادخلہ فیہ جس کے ساتھ وہ ایمان میں داخل ہوا ہے. دوبارہ دیکھ لو. ولا یخرج العبد داخل نہیں ہوتا بندہ من الایمان ایمان سے الا بجحود ما مگر اس چیز کے انکار کے ساتھ ما ادخلہ فیہ جس چیز نے اس کو داخل کیا اس ایمان میں. پیچھے ہم نے جو ہے پڑھا تھا کہ خوارج اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے. پھر معتزلہ کی نزدیک جو ہے وہ کفر میں بھی داخل نہیں ہوگا. گویا کہ ان کی نزدیک جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان ایک منزل ہے, ایک واسطہ ہے جس پر انسان ٹہرتا ہے. جبکہ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, ایمان سے جیسے ہی خارج ہو جاتا ہے تو انسان تو کسی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو ان دونوں فرقوں پر رد کر کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ کہ مومن جو ہے وہ صرف گناہ کرنے سے جو ہے کیا کرتا ہے ایمان سے خارج نہیں ہوگا, ہاں مگر اس چیز کا انکار کرے جس کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا. نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے کو کیا کرنا, نماز پڑھنے کو کیا کرنا, نہ پڑھنے کو, ایک نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھنا, تو یہ کفر ہے. یعنی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کسی پوچھے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں بس میرا دل نہیں چاہتا. یعنی یہ بھی ایک گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑی گناہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ نماز کیا رجحان میں یہ دے کیونکہ میرے اوپر جو ہے نماز فرض ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ عاقل اور بالغ ہے, استہزاء نہیں ہوا, تو پھر جو ہے یہ کفر میں داخل ہوگا. کس چیز میں کفر میں داخل ہوگا, یعنی جب بھی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ انسان کو خارج نہیں ہوتا. ہاں البتہ گناہ کو جو ہے حلال سمجھ کر کرنا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے, کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لے, اس امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو لا کر معتزلہ اور خوارج پر رد کیا کہ گناہ کبیرہ مطلقاً صرف گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے جو ہے انسان یا ہوتا ہے خارج نہیں. ہاں البتہ اگر وہ اس چیز کا انکار کرے, ایمان کا کلمہ توحید کا انکار کرے, اس طرح دیگر احکامات کی فرضیت کا انکار کرے, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا, کافر ہو جائے گا. اور جہاں تک جو ہے معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ وہ ثابت کرتے ہیں, تو اس کی یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ غلط ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. یعنی یہ لوگ جو ہے جو کہ بعض قرآن کے بعض حصے پر ایمان آتے ہیں اور بعض حصے پر کیا کہتے ہیں, بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور راستہ بنا لے, حالانکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور راستہ نہیں ہے. دیکھو اس آیت سے جو ہے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ سبیل کا جو ہے وہ درمیان میں یعنی راستہ نہیں ہے, ایک اور راستہ نہیں, یا تو انسان کافر ہوگا یا جو ہے وہ مسلمان ہوگا, ان کے درمیان جو ہے وہ کیا تھا, ایک اور راستہ نہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس آیات کے تحت میں یہ بات نہیں کی ہے کہ کیا کرے اگر کوئی اسلام اور کفر کے درمیان ایک اور واسطے کو کیا کر لے, مان لے, تو گویا اس نے جو ہے ایک نئی مذہب جو ہے وہ گڑھ لیا, ایک نئی مذہب جو ہے وہ گڑھ لیا, اور یہ جو ہے اصل کافر ہے. ایک جو کافر اور ایک ہوتا ہے ڈھیٹ کافر.
जो कि क्या होता है अपनी बात पर क्या होता है क्या होता है ठहरा हुआ होता है, तो फिर जो है ये क्या होता है जो कुफर और ईमान के दरमियान जो एक और क्रॉस हुआ, तो फिर ये क्या होता है, ये डीटो काफिर होता है। बहरहाल खवारिज और मुतज़िला पर इससे रद्द करते हैं कि नहीं, कि हो एक इंसान जो है वो क्या होता है सिर्फ गुनाह कबीरा की वजह से जो है वो इंसान फासिक तो बन जाता है, गुनाहगार तो बन जाता है, लेकिन जो है ये ऐसा नहीं है कि वो मोमिन क्या होता है, मोमिन ही ना हो, या मोमिन और मुतज़िला के नजदीक मोमिन भी ना हो और काफिर भी ना हो, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर एक और इश्काल होता है, क्या होता है इश्काल, इश्काल ये होता है कि हम इश्काल हमारी ही मजहब पर होता है। किस चीज पर? हमारी मजहब पर होती है, हमारी मजहब पर होती है। हमारा मजहब ये है कि गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाला जो है वो क्या होता है, आप कहते हो कि वो यानी वो दलील में ये पेश करते हैं, मुतज़िला हम पर एतराज करते हैं कि कुरान से साबित है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान एक और वास्ता है, एक और वास्ता है। उनकी दलील ये है कि कुरान में जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वालों को फासिक का है, क्या कहे फासिक का है, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन। तो यहाँ पर जो है देखो, मोमिन और फासिक को तो हम काफिर नहीं कहते ना, तो यानी फासिक से काफिर तो मुराद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गोया मालूम हुआ कि मोमिन के मुकाबले में काफिर के अलावा एक और फासिक भी है, तो फासिक का दर्जा वासिता बना कि नहीं बना, वासिता बना कि नहीं बना। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि कुफर और मोमिन और काफिर के एक और शख्स भी है, वो है या क्या, फासिक। अब इसका जवाब हम ये देते हैं कि यहाँ पर फासिक से मुराद जो है वो काफिर है, क्या है या कुफर है। क्यों? क्योंकि फिस्क के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो क्या है या कुफर का, सबसे फिस्क का बहुत बड़ा दर्जा वो कुफर है। आप लोगों ने उसूल शाशी में जो है ये बात वो की है, ये उसूल पढ़े है कि हो जब भी किसी चीज को मुतलकन जिक्र किया जाए तो उसका फर्द कामिल मुराद होता है, क्या होता है, इसका फर्द कामिल मुराद होता है। तो यहाँ पर जो है फिस्क का फर्द कामिल जो है वो क्या, पूरा कामिल मुराद क्या होता है, कुफर होता है। तो इसी वजह से जो है वो क्या है, फासिक से मुराद जो है यहाँ पर काफिर ही है, क्या है, काफिर ही है। और मैंने बता दिया था कि पीछे कितनी भी हदीस मैंने हमें आप लोगों को जिक्र किए थे कि उससे मालूम होता है कि वो इंसान जो है गुनाह कबीरा से फासिक वो क्या होता है, काफिर नहीं होता है। जैसे कुरान में आता है कि अगर दो लोग जो है आपस में क्या कर ले, जंग और क़िताल करे, तो ये क़िताल कर जो है गुनाह कबीरा है। लेकिन फिर भी मोमिनीन के साथ फिर भी उसको ताबीर किया है, मोमिनीन के साथ उसको क्या कर दिया, ताबीर किया। तो इससे मालूम हो गया कि क्या कहते हैं, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाला मोमिन ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अकीदा नंबर 62 पर चलते हैं। ये बहुत बड़ा अकीदा है और ये यहाँ पर जो है मैं सिर्फ अक़वाल जिक्र कर लूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर जिंदगी रही तो फिर हम जो है इसको किस चीज़ में, हम शरहुल अक़ाइद में इसको काफ़ी ज़्यादा तफसीलन जो है वहाँ पर जिक्र हुआ है, तो वहाँ पर जो है तफसीलन जिक्र करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आप वल ईमानो तर्जुमा जान लें। वल ईमानु हुवा इक़रारु बिल लिसान व तस्दीक़ु बिल जनान। ईमान कहते हैं, ईमान किस चीज़ का नाम है, हुआ इक़रारु बिल लिसान, जुबान से इक़रार करने का, और तस्दीक़ बिल जनाने, और दिल से तस्दीक करने का नाम क्या है, ईमान है। क्या है ये, ईमान है। ईमान में जो है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान कैसे कहते हैं, यानी जब एक इंसान ईमान लाता है तो हम उसका क्या मानी करते हैं, किसने क्या काम किया है कि हम उसको मोमिन कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि ईमान का लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ, ईमान फ़ेल लाजिम से भी आता है, फ़ेल मुतअद्दी से भी आता है। अगर ये फ़ेल लाजिम से आई तो बाब समिया से आएगा अमीना या अमनो अमनन, बमाने महफूज होना, क्या करें महफूज। लेकिन जब यही अमानत जो है हम फ़िल मुतअद्दी
मादी में कन्वर्ट करें यानी बाब इफ़आल में कन्वर्ट करें तो फिर इसका आमना युमिनो ईमाना, तो फिर इसका माने है किसी को अमन वाला बनाना, यानी एक खुद अमन में ना और दूसरा किसी को अमन वाला बनाना। जैसे मैं कह रही थी आमन तु ज़ैदन अमरन, मैंने ज़ैद और अमर को क्या कर दिया, अमन दिया, या आमन तु ज़ैदन, या मैंने ज़ैद को अमन दिया। तो अफ़आल से जो है अब यहाँ पर जो है ईमान जो है बाब इफ़आल से आए, यानी किसी को अमन वाला बनाना। तो मोमिन को मोमिन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जो लोग कुरान के अहकामात पर अमल करते हैं, उस पर ईमान लेते हैं, गोया कि उन्होंने खुद को अमन वाला बना दिया। क्या कर दिया, खुद को अमन वाला बना दिया, अल्लाह तबारक तआला के अज़ाब से जो है वो महफूज हो गया। ईमान की सिले में कभी उसके साथ बाहर फिजर आता है, कभी जो है लाम आता है, कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। जब इसके मानी जो है जब उसके सिले में बाहर फिजर आ जाए तो फिर ये यकीन का माने है। कुल्लु आमन बिल्लाहि, कुल्लु आमन बिल्लाहि, कह दो कि हम ईमान लाते हैं, हम यकीन रखते हैं अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर, यकीन रखते हैं अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर। अगर इसके सिले में जो है लाम आ जाए, बिल्लाही में बाहर फिजर आए ना तो ये यकीन का माने आ जाता है। अगर लाम हर फिजर आ जाए तो फिर ये तस्दीक के माने आते हैं। लनुमिनन्न लका, हम जरूर बजरूर जो है आपकी तस्दीक करें, हम जरूर बजरूर तस्दीक करेंगे। और जब और कभी कभार जो है लाम हर फिजर आ जाए तो फिर कभी करा इत्ताअत और इनक़ियाद के माने भी आता है। जैसे कुरान में आता है लनुमिनन्न लका वत्तबिअल अरज़लून, हम जरूर बजरूर जो है वो क्या करते, आपकी इताअत करते, इनक़ियाद करते। ये तो हो गया ईमान, कभी तस्दीक के माने भी आते, कभी यकीन के माने में आते, कभी हिफाजत के माने, कभी किस चीज़ के माने। और इस्तिलाही माने तस्दीक बिमा जाआ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तस्दीक बिमा जाआ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस चीज़ का तस्दीक करना है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लेकर आए हैं। तो अब जो है ईमान जो है किन चीज़ों का मजमुआ है। अच्छा, पहले ये बात जानो, इकरार बिल्लिसान। इकरार बिल्लिसान ये है कि आप जुबान के साथ ये कहे, दिल में तस्दीक हो या ना हो, इकरार कर ले कि हाँ मैं ईमान रखता हूँ, हाँ मैं ईमान रखता हूँ। तस्दीक, और तस्दीक कैसे कहते हैं यहाँ, तस्दीक कैसे कहते हैं यहाँ, तस्दीक कहते हैं कि दिल में जो है वो क्या कर ले, ईमान लेकर आए, दिल में जो है वो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात, नवाई वगैरह वगैरह पर तस्दीक हो। अब जो है ईमान किसे कहते हैं, यानी ईमान सिर्फ तस्दीक बिलक़ल्ब का नाम है या इक़रार बिल्लिसान का नाम भी है। यानी जब इंसान ईमान लाता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिल में तस्दीक होना ज़रूरी है या ज़ुबान से भी कहना ज़रूरी है कि हो क्या होगा, मैं जो है ईमान लाता हूँ, मैं जो है ईमान लाता हूँ। तो इसके बारे में ये जान लो, अहनाफ मुहद्दिसीन, इमाम अबू मंसूर मातुरिदी या इमाम नसफी, ये लोग फरमाते हैं कि ईमान सिर्फ और सिर्फ तस्दीक बिलक़ल्ब का नाम है। यानी अगर कोई से सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का नाम है, तस्दीक बिलक़ल्ब का नाम है, यानी जो इंसान दिल से तस्दीक करे बस वो ईमान है। हाँ, अलबत्ता दुनिया में इजराए अहकाम के लिए इक़रार बिल्लिसान शर्त है। दुनिया में अहकाम, इजराए अहकाम के लिए इक़रार बिल्लिसान, मिसाल दी थी आप लोगों को, मिसाल के तौर पर ज़ैद है, उसने दिल में तो तस्दीक की है, दिल में जो है सच्चा मोमिन है, लेकिन जुबान पर जो है वो कहता है कि मैं काफिर हूँ, मैं काफिर हूँ। दिल में सच्चा मोमिन है लेकिन वो जुबान पर कहता है, किसी वजह से जो है वो जुबान पर कहता है कि हो क्या है मैं काफिर। तो ये दुनिया के लिहाज से जो है, दुनिया के लिहाज से जो है उस पर कुफर वाले अहकाम जारी होंगे। मिसाल के तौर पर काफिर पर जो अहकाम जारी होते हैं वही इस पर भी अहकाम जारी होंगे। कुछ से टैक्स लिया जाएगा, उसको कुफारों की ज़मरे में खड़ा किया जाएगा, उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या है, बैनहु फीमा बैनिल्लाह, दियानतन जो है ये क्या होगा, मुसलमान होगा। ये ध्यान, यानी अर्ज यह है कि दुनिया में तो ये काफिर था, लेकिन क़यामत के दिन जो है अल्लाह तबारक तआला अगर वाकई उसके दिल में तस्दीक हो ईमान की, तो फिर जो है ये मोमिन होगा। ये क्या होगा, मोमिन होगा। उससे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। ये हमारा जो है अहनाफ का मसलक है। जबकि जो है जो हम ये कहते हैं कि ईमान सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस चीज़ का नाम है, मारिफत का नाम है।
क्या है ये? जहमिया का कहना यह है कि सिर्फ मारिफत का नाम है, मतलब यह है कि बस जब आप सिर्फ ये कह ले अल्लाह तबारक व तआला को पहचान ले, चाहे पहचान ले, तस्दीक हो या ना हो, इकरार बिल्लिसान हो या ना हो, बस जब आपने पहचान लिया तो बस जो ये ईमान है। इसके सारे दलाइल हम बाद में देखेंगे उस शरहुल अकायद में। करमिया का कहना यह है कि नहीं, ईमान जो है गोया कि उनके नज़दीक, देखो जहमिया का पॉइंट, गोया कि उनके नज़दीक जो है अबू तालिब भी मोमिन है, मुसलमान है, अबू तालिब भी, क्योंकि उनके नज़दीक, उनके दिल में जो है वो मारिफत थी। हाँ, अलबत्ता तस्दीक बिलक़ल्ब, इक़रार बिल्लिसान नहीं थी, इक़रार बिल्लिसान तस्दीक बिलक़ल्ब जो है वो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जो है ईमान के बारे में मारिफत थी, उसने जा बजा इक़रार भी किया था इसकी बात की, इस मारिफत का इक़रार किया था, ईमान का नहीं, फिर भी जो है हम उसको काफिर कहते हैं, और ये लोग जो है उसको क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं। करमिया जो है ये एक फिरका है, उसका कहना यह है कि ईमान सिर्फ इक़रार बिल्लिसान का नाम है। किस चीज़ का नाम? इक़रार बिल्लिसान का नाम है। गोया के उनके नज़दीक जो है ये मुनाफिक लोग जो है वो क्या है, ये लोग भी मुसलमान है, ये लोग भी मुसलमान, हालांकि कुरान में क्या, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, वो निचली सतह में होंगे, जहन्नम की बिल्कुल नीचे तह में होंगे, तो उनके नज़दीक जो है वो इक़रार बिल्लिसान करना है। मुअतज़िला और ख़वारिज का कहना ये है कि ईमान 3 चीज़ों से मुरक्कब है, तस्दीक बिलक़ल्ब, इक़रार बिल्लिसान, अहमाल सालिहा, इनमें से एक भी छूट जाए तो बस जो है इंसान फौरन ईमान से निकलेगा। मिसाल के अगर कोई किसी ने नेक अमल नहीं किया, गुनाह कबीरा, तो उसके नज़दीक जो है वो खारिज हो गया, वो खारिज गया, इन 3 चीज़ों का नाम है, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आप लोग जान लें कि अहनाफ और मुर्जिया भी कहते हैं कि वो इक़रार बिल्लिसान है, मुर्जिया भी कहते हैं कि इक़रार बिल्लिसान का नाम है। अब यहाँ पर सवाल ये होते हैं कि फिर हमारे अहनाफ भी तो कहते हैं ना इक़रार बिल्लिसान, तो मुर्जिया और हमारे दरमियान फ़र्क क्या रहा? मुर्जिया और अहनाफ के मज़हब में फ़र्क क्या रहा? तो फ़र्क है, क्या है? फ़र्क है, वो इसी तरह फ़र्क है कि हम कहते हैं कि तस्दीक, ईमान तस्दीक बिलक़ल्ब का नाम तो है, लेकिन उसका शर्त जो है वो क्या है? इक़रार बिल्लिसान है। क्या है शर्त? इक़रार बिल्लिसान है, इक़रार बिल्लिसान है। और वो कहते हैं कि नहीं, इक़रार बिल्लिसान बिल्कुल कोई चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि ईमान बस तस्दीक बिलक़ल्ब करना है, तस्दीक बिलक़ल्ब, इक़रार बिल्लिसान का कोई भी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उस पर जो है दुनिया में भी अहकाम मोमिन वाला जारी होंगे। तो अब जो है वो क्या हो गया, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ये वही बहस छेड़ी है, क्या छेड़ी है? वही बहस छेड़ी है कि वल ईमान हुवल इक़रार बिल्लिसानी व तस्दीक बिलजनान, कि ईमान जो है ये इक़रार बिल्लिसान और तस्दीक बिलजनान का नाम है, यानी इक़रार बिल्लिसान जो है ये ईमान के लिए शर्त है, और तस्दीक बिलजनान जो है ये तो ईमान ही है, बेआइनी ही ईमान ही है। तो ये मैंने सिर्फ अक़वाल बताए, क्या बताए हैं? ये सिर्फ मैंने अक़वाल बताए। ये सब लोग जो है जा बजा खुद अपना दलील पेश कर रहे हैं, हम सब के अक़ाइद पर रद्द भी करते हैं कुरान के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से रद्द करते हैं, लेकिन यहाँ पर तफसीलन जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरहुल अक़ाइद हम पढ़ रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वहाँ पर जो है हम पढ़ लेंगे। अब मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, और ये जो है वो जमीअ मा सह, ये इसमें भी थोड़ा बहुत जो है तफसील है, वो जो है बाकी पढ़ लेंगे। आज वो दूसरा अक़ीदा भी जो है वो बड़ा है।